Welcome back to another video. Today we are going to have a discussion on one of the key sectors which we are looking at right now. And again, it's not a buy or sell recommendations through any means. It's just for educational purpose, and this is just to show you like how we look for the ideas. So, as of today, if we just want to analyze any kind of a sector before reading or analyzing any company, first we look for is there any kind of a tailwinds which a sector is going through. For example, a few years back, you have seen, if you have gone through the finance budget of 2022, we have seen like our finance minister, Miss Nirmala Sitaraman, has allocated a budget of 10 lakh crore rupees. And that year was special because of two reasons. First, the infrastructure budget has increased by 33%. In 2022, the budget from 7.5 lakh crore rupees is increased to 10 lakh crore rupees. That's a jump of over 33%. And I just want to show you like how this kind of so what do I mean by tailwinds? Let me explain you. So there was a capex push from the government side because the economies were not doing well at after 2020 because of the covid reasons and all. There were shutdowns across all over the globe and all. And as a developing nation, you have to build some of the instruct not some of the like you have to build a basic infrastructure for your country so that you can attract foreign direct investment. And for that, the allocation for roadways, railways, that 10 lakh crore rupees, where it going to be spent on roadways, railways, highways, waterways, tunnels, airports, and many more. And to build all this kind of infrastructure, what what will be the basic raw material which is used to build all of these things? Your cables and wires, steel tube pipes, cement, um, paints, and many more. Okay, so I just want to grab your attention towards like there is one of the companies. This is KEI Industries. It's into manufacturing of cables and wires, and I just want to draw your attention from the last 5 year perspective. Can you just see like in 2022 how the stock has been like, and like similar you can see in the balance sheet, in P&L statement as well. You can just see like how the growth has been. Like can you just see like in 2021 around 4,000 crore से जो sales हैं डबल हो गई हैं in just next 3 to 4 years. But can you just see कि like stock has been like 4 times. जो sales है वो आपकी डबल हो गई, but stock has been re-rated 4 to 4 times. I just want to grab your small attention. So there is a concept called PE re-rating. So what do I mean by PE re-rating? So as you can see, as of December 2022, you can just see कि like जो stock का PE था was around 30 के आसपास, ठीक है. But right now, can you just see कि like stock का price at a high 70 पार कर गया था. So PE re-rate कब होता है? When the market is valuing that particular industry at a higher valuations. तो इधर at this point of time जो re-rating हुई from 30 to 70, it's just because of the people are expecting कि this kind of an industries from last few days or like from last 6 months, you can see कि like the stock is into consolidation mode. But as of today ki like these are the small things which you should look for a company. So as of today we are looking at one of the key sectors which is into railways. And railways, maybe there is a subsector which we are looking at right now. So I just want to grab your attention. Just go on Google and type over here Kavach. Maybe there are chances कि some of you have heard about this system, but I just want to grab your attention कि like कवच होता क्या है? It's a system which is used by the railways, which is used to protect क्योंकि I just from last, I think last year or last to last year, there was a collision in Odisha, in which
we have seen कि like we have lost more than 150 people in that incident, and the Kavach system was not installed over there, or if it was installed, so I think that didn't work properly over there. And if you just gone if you just Google Pay, if you just go and type Kavach, so you can just see some of the articles over here. So after going through these articles, you will came to know कि like the government has suddenly realized कि like it is very important to install these Kavach system across all over India as soon as possible, and the government has set a target of around 2030 कि 2030 तक they want to allocate Kavach system across all over India. And if you just see कि like if you go through these articles, you will find out कि like recently the tenders were launched by the government of around 11,600 crores. You can see some of the companies which are listed or in unlisted space in India. So Meda is one of the largest player in this Kavach installation system. After that, HBL Power and Kidnix Microsystem are there, which are listed players. There are one or two more companies, but they are on a very small level in uh, Kavach installation system. So इसकी वजह से हो 11,600 crores. तो if you just go again back to this, तो like let's type HBL Power एक बार, HBL Power, and this company has built the technology around 2008 to 2010 के आसपास, but the orders for this Kavach installation system वो अभी मिले हैं after 10 years or 15 years. तो you can just see कि like last 5 years में the run up has been massive. Can you just see कि like 50 rupees से stock right now trading at around 500 550 levels. एंड इफ़ यू जस्ट गो टू द बैलेंस शीट ना, तुम्हें अपने मार्जिन्स में ही दिख जाएगा. तो इन 2015 द मार्जिन वर अराउंड 10 8 9%. कब तक चले वो? 2021 तक. बट कैन यू जस्ट सी कि लाइक लास्ट 2 सालों में हाउ द इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन डन फ्रॉम 11% टू 19% 18% मार्जिन्स. एंड इसकी वजह से लाइक ऑर्डर्स जब पहले मिल जाते हैं ना, तो मार्केट में एक बस क्रिएट होता है अराउंड दैट कंपनी, अराउंड दैट स्टॉक. एंड यू कैन जस्ट सी कि लाइक इफ यू जस्ट गो टू द पी रेशियो, तो यू कैन जस्ट सी कि लाइक यहाँ से द स्टॉक इफ वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 30 पी, राइट नो यू हैव सीन कि लाइक द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 45 का पी. सो इट्स ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स कि लाइक when there is a tailwind from the अब government ने ही right now the government has issued a tender of around 11,600 crores, and the total allocation of budget is around 50,000 crores, and उसमें से only 20% is reserved for the new companies. Remaining 80% is only for the established player like Medha, HBL Power and Kirnix Microsystem. So you can imagine the growth potential over there. राइट नो अगर तुम इनकी सेल्स जाके देखोगे, तो एज ऑफ 2024 राइट नो दोज आर 2,200 करोड़ के आसपास की सेल है. एंड इन फ्यूचर वी आर एक्सपेक्टिंग कि लाइक इफ दे आर गेटिंग अराउंड 20 ऑन अ कंजर्वेटिव लेवल, दे आर डूइंग दे आर गेटिंग द ऑर्डर्स. एंड अभी अगस्त में ही टेंडर्स फाइल हुए थे. नवंबर is going on. Today is 15th of November. I think in a few days or maybe in next month tenders के orders के results आ जाएंगे, and you can see after that. And like वो तो 11,600 करोड़ का है ना. अभी remaining 38,400 करोड़ का जो अभी दूसरा बजट आएगा, सो उसमें से how much they can secure the orders, वो तुम्हें that's the work you can do. Then इसमें if you want to build a financial modeling system, a financial model on the company basis, you can imagine कि like अगर ये 21% के मार्जिन सस्टेन करते हैं, रिमेनिंग 38,000 करोड़ में से भी अगर कंपनी इज एबल टू सिक्योर अराउंड 20 25 30, टोटल अपॉर्चुनिटी साइज है वो अराउंड 30,000 किलोमीटर्स की बात करें तो
उसमें से 3000 किलोमीटर्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय दीज बिग थ्री प्लेयर्स, मेधा, एचबीएल पावर एंड किरनिक्स माइक्रो सिस्टम. जो रिमेनिंग 27,000 किलोमीटर्स है, दैट्स द ग्रोथ इंजन विच कंपनी यूज टू एंजॉय इन द कमिंग फ्यूचर. एंड अगर आज इनकी सेल्स की बात करें तो 2000 करोड़ के आसपास है. एंड सो इफ़ यू आर एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी, तो इनका जो मेन डिवीजन है दैट्स इनटू बैटरी सिस्टम. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ कंपनी, तो उसमें से इफ़ जो तुम्हारा लाइक फेसबुक की बात करें, तो आई थिंक उनका आज, इफ एज ऑफ टुडे, जो मार्केट शेयर है, इट विल बी ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड. एंड इंस्टाग्राम की बात करें तो मे बी इट्स गेटिंग टूवर्ड्स दैट पॉइंट कि लाइक मे बी नॉट मोर पीपल विल सब्सक्राइब टू इंस्टाग्राम एज ऑफ टुडे. मे बी might uh, they might switch to some other platform. तो जब टैम इज लाइक कि अब इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ सकती, तो यू हैव टू फाइंड कि लाइक जो तुम्हारी कंपनी है, अगर उसमें कोई एक स्टैगनेंट पॉइंट हो जाए, यू हैव टू लुक फॉर कि लाइक फ्यूचर ग्रोथ इंजन्स. तो कवच इज दैट फ्यूचर ग्रोथ इंजन फॉर एच बी एल पावर माइक्रो सिस्टम्स और मेधा के लिए. एंड जो इनका मेन डिवीजन है वो बैटरीज में है. अगर तुम्हें उनका जो बैटरी डिवीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दो जो कंपनीज अपनी कॉन कॉल्स करती हैं, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस रिकॉर्डिंग. इट्स अराउंड 2 आवर लॉन्ग एंड इट विल टेल यू अबाउट कि लाइक उनका बैटरी डिवीजन कैसा कर रहा है, डिफेंस में कैसे कर रही हैं, जो रेलवेज को सप्लाई जो अदर हो रही है वो कैसा कर रही है, जो एरोस्पेस में जो बैटरीज हैं वो हाउ विल दे डू इन द अपकमिंग फ्यूचर. क्रेडिट रेटिंग्स यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस. जैसे ये केयर एज की है, तो देर आर अदर कंपनीज एज वेल लाइक क्रिसिल एंड ऑल, तो वो भी दे यूज टू एनालाइज द बिजनेस. एंड इसमें यू कैन गो डीप डाइव इनटू कि लाइक इनके एबिटा मार्जिन्स कैसे बन सकते हैं. जितना भी वो आइडिया होगा कवच के बारे में कि लाइक टोटल टाइम एंड ऑल, वो तुम्हें इधर से पता चल जाएगा. यू डोंट हैव टू बी completely डिपेंड ऑन दिस, बिकॉज ये बायस्ड भी हो सकती है, बिकॉज दे यूज टू गिव रेटिंग्स. एंड ये लाइक कंपनी हैव टू पे दीज कंपनीज टू डू देयर क्रेडिट रेटिंग्स. जो तुम देखते होगे कि ट्रिपल ए रेटिंग है, डबल ए रेटिंग है, ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है, तो दीज ऑल आर द रेटिंग्स विच आर गिवन बाय दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. अनाउंसमेंट के अंडर अगर तुम लोग आओगे तो तुम्हें सारी पता चल जाएंगी बातें कि लाइक यार तो अगर जो मैंने टेंडर्स की बात करी, तो जैसे ही टेंडर्स आ जाएंगे, वो कंपनी हैव टू बी लाइक फाइल दोज इंफॉर्मेशन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जो बी एस सी एंड एन एस सी होते हैं. एंड उस पर तो जैसे ही तुम इधर आके ऊपर फॉलो कर लोगे, तो इट विल गेट एडेड इन टू योर वॉच लिस्ट. एंड जिस ईमेल के थ्रू तुमने स्क्रीनर पे साइन इन करा है, तुम्हारे अपडेट्स उस ईमेल पे आते रहेंगे. एंड यू डोंट हैव टू, तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि लाइक मेक अ सेपरेट ईमेल आईडी फॉर दीज वेबसाइट्स, सो दिस विल हेल्प यू कि लाइक सारा जो भी हौच पौच होता है उससे इट विल प्रिवेंट यू. एंड सो दिस इज द analysis of HBL Power. And the other company which I was talking about, so हर जैसे वी आर टॉकिंग एज ऑफ रेलवेज में, इट्स अ नीश सेगमेंट जो कवच का है. तो देर इज वन मोर कंपनी बाय द नेम ऑफ, सॉरी, फ्रंटियर स्प्रिंग्स के नाम से. आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट वंदे भारत. just go, and if you have not heard about it, just go on YouTube and type वंदे भारत. तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट कि लाइक वंदे भारत है कैसी ट्रेन एंड कितना अपॉर्चुनिटी साइज है. तो you will came to know Vande Bharat is like the new trains which are going to be launched in the near future. And जो गवर्नमेंट है दैट इज ट्राइंग देयर फुल्ली बेस्ट टू इंस्टॉल इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज उधर जो स्पीड है दैट इज ऑल्सो इन्हांस, सो एफिशिएंसी उधर आ जाएगी. एंड अदर थिंग इज कि लाइक जो उनका एक्सपीरियंस है ऑफ दीज न्यू ट्रेन्स इज बेटर देन द प्रीवियस वंस. सो फ्रंटियर स्प्रिंग्स करती क्या है, तो तुमने जो वंदे भारत है उसकी जो राइड होती है वो स्मूथ इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो फ्रंटियर स्प्रिंग्स है दैट इज प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ एयर स्प्रिंग्स
जो उस राइड को स्मूथ बनाते हैं। अगर इफ़ यू हैव ट्रैवल थ्रू ट्रेन्स एंड ऑल, तो पहले इतनी अच्छी फ्लुएंट राइड नहीं होती थी, बट अगर तुम वंदे भारत से ट्रैवल करोगे यू हैव सीन द डिफरेंस। तो राइट नो, अगर तुम कंपनी के पीई की बात करो, दैट इज़ अराउंड 36। इट्स अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी, लाइक माइक्रो कैप में आ सकती है। 1000, इट्स अराउंड 800 करोड़ राइट नाउ। एंड अगर तुम आज के 2024 में इनकी सेल्स देखोगे, तो दैट इज़ अराउंड 135 करोड़। बट द कैच इज़ ओवर हेयर कि लाइक इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स दे हैव क्रॉस द सेल्स ऑफ अराउंड, अगर इन 2 क्वार्टर की बात करें जून एंड सितंबर में, तो अराउंड 100 करोड़ की दे हैव ऑलरेडी डन दिस सेल। एंड लाइक द लास्ट क्वार्टर से जो अभी एज ऑफ टुडे इज 16। एंड अगर तुम इनके लाइक लास्ट क्वार्टर से अगर तुम इसे कंपेयर करो, तो यू हैव सीन कि लाइक कितना ज़्यादा 100% इन Q1 जंप आया है। एंड अराउंड द सेम इज इन Q2 एज वेल। तो इनके एबिटा मार्जिन्स की अगर हम बात करें, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड, लाइक 20% के अराउंड पहुंच गए इनके एबिटा मार्जिन्स। सो दिस इज़ द थिंग कि लाइक यू शुड एक्सपैंडिंग एबिटा मार्जिन्स। तो स्टॉक मार्केट जो रियलाइज करती है, तो दे स्टार्ट गिविंग दीज कंपनीज अ बेटर वैल्यूएशन देन द अदर कंपनीज। वो इसलिए होता है कि लाइक द कंपनी इज एक्सपैंडिंग देयर सेल्स एज वेल। If there is a company which is growing more than 50%, the market will automatically reward those companies. There are chances कि like as of today अगर 135 करोड़ की 2024 में सेल करी, तो just by going to the PPT लेटेस्ट क्वार्टर की, तो तुम्हें पता चल जाएगा। एंड द मैनेजमेंट जो है, तो यू कैन जस्ट सी कि लाइक इनके जो प्रोडक्ट डिविजन्स हैं, तो एक है स्प्रिंग डिवीजन है, दूसरा इज फोजिंग डिवीजन, एंड एयर स्प्रिंग्स जिसकी हमने बात करी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिविजन्स ओवर देयर। एंड जो हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट एज रिसेंटली गाइडेड कि लाइक जो कंपनी है वो इस साल अराउंड 240 to 250 करोड़ की सेल करेगी। एंड द केपेक्स इज लाइक द पुश इज फ्रॉम द रेलवेज कि लाइक यार वी नीड दो स्प्रिंग्स। एंड इन द नेक्स्ट 2 years द मैनेजमेंट इज गाइडिंग कि लाइक 500 करोड़ की सेल करेंगी। ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एंड यू कैन जस्ट सी कि लाइक द ह्यूज जंप ओवर हेयर। एंड इफ़ यू जस्ट स्क्रोल डाउन एज वेल, तो तुम्हें एक डिवीजन पता चल जाएगा कि लाइक कंपनीज बताती हैं कि लाइक जो वैगन्स हैं या फिर टोटल टाइम कितना है, तो 2.4 लाख करोड़ में से दिस कंपनी इज ओनली फॉर द एयर स्प्रिंग्स एंड फोजिंग्स एज वेल। तो उसमें से दे आर केटरिंग टू दैट सेगमेंट। एंड अगर आज के हिसाब से इफ़ यू जस्ट लुक एट कि लाइक P&L स्टेटमेंट पे, तो अगर 135 करोड़ की सेल है, एंड इन दिस ईयर दे आर सेइंग कि लाइक अराउंड 240 करोड़ की सेल करेंगी, तो अराउंड 70 to 80% जंप। एंड 2 साल में दे आर सेइंग कि लाइक दे विल रीच अराउंड 500 करोड़ की सेल। एंड अगर तुम इसका फाइनेंशियल मॉडल बनाओगे, तो 500 करोड़ की सेल पे अगर जस्ट एक्सपेक्टिंग द सेम मार्जिन अराउंड 20%, तो and by just keeping the depreciation and interest cost at the same level, तो you can imagine कि like यहाँ से कितना आ सकता है। एंड by तो PE होता क्या है बेसिकली, विच इज़ मार्केट कैप अपॉन में योर नेट प्रॉफिट्स। तो अगर तुम EBITDA मार्जिन पे, अब नाउ दिस इज द वर्क यू हैव टू डू कि लाइक एज ऑफ टुडे द कंपनी का जो पी है वो अराउंड 36 है। 500 करोड़ की सेल को एक्सेल फाइल में 500 करोड़, जस्ट पुटिंग दिस इंफॉर्मेशन एक्सपेंसेस के हिसाब से सेम। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो तुम्हारे इधर आ जाएंगे अराउंड, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 20% हो जाए, लाइक द रीसेंट क्वार्टर्स वन। एंड क्या ये एक्सपैंड हो सकते हैं, तो ऑन द कंजर्वेटिव लेवल तुम 20 करोड़ ले लो, अगर एक्सपैंड होते हैं दैट्स अ बोनस के लाइक। बट ऑन अ, तो 3 केस बनते हैं इफ़ यू आर मेकिंग अ फाइनेंशियल मॉडल: बुल केस, बियर केस एंड बेस केस। बुल केस इस लाइक कि अगर यहाँ से मार्जिन और एक्सपैंड कर जाए, तो अपने 3 केस बनाना, जिसमें एक में तुम 25% कर रहे हो, एक में अराउंड 23% कर रहे हो, एक में 20%, तो बेस केस वो हो जाएगा तुम्हारा। एंड यही सेम मार्जिन के साथ यू कैन मेक दिस फाइनेंशियल मॉडल। एंड जो मैं पीई की बात कर रहा था, दैट इज अराउंड योर मार्केट कैप अपॉन में योर नेट प्रॉफिट्स। तो मार्केट कैप अगर
तुम्हारा आज के हिसाब से 812 करोड़ है, एंड उसमें तुम अगर FY 27 में जो अर्निंग्स आएंगी कंपनी की वो तुम अगर कर दो, अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है, तो यू कैन जस्ट डिवाइड इट, कि लाइक तुम्हें अ कंपनी विच इज़ इनटू अ नीश सेगमेंट इज गेटिंग अराउंड 8 का पी। तो ये फ्यूचर एजम्पशंस होती है, तो दिस इज हाउ यू मेक योर फाइनेंशियल मॉडल्स। तुम्हें लगता होगा कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू रियलाइज कि लाइक जो कंपनीज होती है वो हर क्वार्टर के एंड में, यूजुअली बिग कंपनीज यूज टू डू कॉन कॉल्स एंड ऑल एट एंड ऑफ ईच एंड एवरी क्वार्टर, बट स्मॉल कंपनीज में ऐसा यूजुअली होता है कि लाइक कभी कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट्स में तुम जाओ, सो दीज आर द लाइक कॉन कॉल्स जो होती हैं, तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि लाइक यार क्या इंडस्ट्री का आउटलुक है, का इज द सेक्टर इज डूइंग ग्रेट और नॉट, एंड क्या फ्यूचर आउटलुक है। एंड देर आर पीपल लाइक इन्वेस्टर्स, लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स, देर आर लाइक फ्रॉम म्यूचुअल फंड हाउसेस, तो वो आते हैं एंड दे यूज टू अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर की लाइक व्हाट आर द like future outlook and all and everything ki like जो भी तुम्हारा question है related to that company, you can just come over here and ask directly from the management. um, and अगर तुम्हें like some of you are thinking कि like यार ये कौन पढ़ेगा इतनी बड़ी बड़ी transcripts and all, I will give you two alternatives, but I will still suggest you कि यार at least 50 to 100 transcripts पढ़ लेना of different companies, so that at least you get an idea कि like एक बार थोड़ी सी रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो जाएगी एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ दीज कॉन कॉल्स। ठीक है, तो अगर तुम्हें ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं पढ़नी है तो जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड टाइप, देर इज अ चैनल बाय द नेम ऑफ अल्फा स्ट्रीट। तो अल्फा स्ट्रीट में जैसे ही तुम जाओगे, लाइक आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू दिस चैनल, एंड देर इज वन मोर चैनल बाय द नेम ऑफ ट्रेंड लाइन, आई विल शो यू एज वेल। तो इस जैसे फ्रंटियर स्प्रिंग्स की कॉन कॉल आ गई है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस कॉन कॉल एंड यू कैन लिसन इफ यू डोंट वांट टू रीड। एंड जितनी भी तुम्हारी कंपनीज की कॉन कॉल्स होती है फ्रॉम A to Z, तुम्हें मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे मिल जाएंगी, एंड दिस इज like a great channel to follow. And one more by the name of Trendline which I'm talking about. तो अगर तुम्हें बाई चांस अगर कोई कंपनी की कॉन कॉल रह गई है, तो यू जस्ट केम ऑन ट्रेंड एंड यहाँ पे तुम्हें उन कंपनीज के मिल जाएंगी जस्ट। एंड अभी रिसेंटली अर्निंग सीजन एंड हुआ है, Q2 एंड हुआ है, एंड बहुत सारी मैनेजमेंट अभी अपनी कॉन कॉल्स कर रही हैं। तो this is how you go for the ideas. आने वाले टाइम में I will make a separate video on कि like how you can screen the ideas through this screener only. So like talking about तो screens पे जैसे ही तुम जाओगे तुम्हें यहाँ पे प्री मेड screens मिल जाएंगी थोड़ी बहुत, जैसे like if you just click on this, so low on 10-year earnings, तो तुम्हें यहाँ पे there are certain companies which you are able to find, and लाइक इसमें तुम्हें दिख जाएगा कि लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन तुमने कितना डाले, डेट टू इक्विटी कितना एंड ऑल। तो जैसे तुम डालोगे, अदरवाइज यू कैन मेक योर ओन स्क्रीन्स, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुम डालोगे, आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि लाइक तुमने इसमें डाला कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 1000 करोड़, लेस देन 10,000 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर द कंपनी इज ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स लाइक 15 और 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी तुमने डाला कि मोर देन 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो तुम्हारा निकला वो भी 20%, डेट टू इक्विटी इज लेस देन 1, एंड देर आर मेनी मोर थिंग्स कि लाइक कैपिटल ब्लॉक अगर तुम्हारा 2x हो रहा है, कहीं 3x हो रहा है, जो केपेक्स बेसिकली कंपनीज कर रही है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। लाइक यहाँ पे जैसे FII बाइंग में तुम जाओगे, तो देर आर सर्टेन कंपनीज जहाँ पे FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग बढ़ रही है, तो दे आर ऑल्सो एनालाइज companies, and after that doing all of those due diligence, they are increasing their stake, like maybe that company might do well in future. तो इधर से तुम्हारे कुछ क्राइटेरिया सॉर्ट हो जाते हैं, आफ्टर दैट यू कैन जस्ट गो फॉर द कॉन कॉल्स, तुम उन लाइक ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स यू कैन लुक अराउंड। जैसे इन फ्यूचर आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ऑन होटल सेक्टर, तो अगर तुम्हें नहीं पता कि लाइक जैसे इंडियन होटल्स है या फिर ओवरऑल होटल्स है, देर इज बाय द नेम ऑफ सैमी होटल्स लाइक मैरियट एंड ऑल,
तो अगर तुम्हें नहीं पता कि लाइक कौन कौन से होटल्स हैं इन द इंडियन लिस्टेड स्पेस, तो जस्ट यहाँ पे होटल एंड रेस्टोरेंट्स के उसमें कंपनीज आओगे तो इंडियन होटल्स इज़ द लार्जेस्ट होटल कंपनी विच इज़ लिस्टेड इन इंडिया. And Oberoi Hotels is there. Chalet, it's a Hyderabad based company. Used to operate in Hyderabad, so region based player. Sami Hotels is over there as well. Lemon Tree is like Mumbai based. So these are the hotel companies which you. So I will try to make a separate video for that. एंड अगर यार लाइक द सेकेंड ऑल्टरनेटिव विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि यार अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है कि लाइक यार तुम्हें कॉन कॉल्स के थ्रू जाना है या फिर तुम्हें ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं पढ़नी है, तो द सेकेंड इज जस्ट गो टू चैट जीपीटी. यहाँ पे जस्ट अपलोड द, जैसे यहाँ पे फ्रंटियर स्प्रिंग्स की हमने बात करी, तो ये जैसी अपलोड हो जाएगी उसके बाद जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट कि प्लीज़ मेक अ डिटेल्ड समरी ऑफ द कॉन कॉल and tell about the financial performance of the company, comma business segment, comma industry outlook, जैसे तुम इसको ये प्रॉम्प्ट दोगे इट विल क्रिएट अ डिटेल्ड समरी ऑफ दैट कॉन कॉल एंड तुम्हें सब पता चल जाएगा कि लाइक इंडस्ट्री के ग्रोथ आउटलुक्स कैसे है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कंपनी गाइडेंस कितने की दे रही है. एंड जैसे ही तुम इसके उसकी बिजनेस सेगमेंट में जैसे एयर स्प्रिंग्स है, कॉयल स्प्रिंग्स है एंड फोजिंग के बीच का डिवीजन है, तो इसमें तुम्हें वो भी पता चल जाएगा कि लाइक अब जैसे इफ़ यू जस्ट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस ना, लाइक अब जैसे तुम्हें नहीं पता कि लाइक एयर स्प्रिंग्स करते क्या हैं, तो जस्ट टाइप इट कि लाइक व्हाट आर एयर springs used for. तो इसमें तुम्हें पूरा वो पता चल जाएगा कि लाइक एयर स्प्रिंग्स जो LBH है, जो लाइट वेट बेसिकली कोचेज होते हैं उसमें इसका रोल होता है एंड वही कि स्मूथनेस हो जाती है इन राइड एंड ऑल एंड दे आर मोर एफिशिएंट, मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑल. वो सब तुम्हें जितने भी रीजंस है वो तुम्हें पता चल जाएंगे. तो अगर तुम्हें नहीं पता कि लाइक what is the forging division for the company, in upcoming years. तो तुम्हें पता चल जाएगा कि लाइक फोर्जिंग डिवीजन में क्या ग्रोथ आ सकती है, नहीं आ सकती, कोई मैनेजमेंट ने ट्रांसक्रिप्ट में कोई उसकी बात करी है नहीं करी, तो सारे तुम्हारे पास रीजंस आ जाएंगे. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक द एनालिसिस. In coming videos I will try to cover some of the sectors which are also getting through tailwinds. One of them is hotel sector, as I already told you. Other sectors are power sector, transmission sector. There are companies which are into water treatment and all. There are companies which are into wealth management ki like transition kaise ho raha, because as your per capita grows there are people who go for these services which helps you, like when HNI people, like the people having net worth of more than 1 crore rupees, they hire some of the companies or become millionaire, so they hire some of the companies to increase their
wealth, because it is difficult after having 1 crore or 7 as of today. agar if you said you are a millionaire in India, so more than 8.2 or 8.3 crores ke baad you need certain kind of services which are required to um, get all of these things, because you want to also grow your wealth with time and all. So, and I will also try to come up with the valuation part ki, like how to value these companies with all the basics and all, so you can get. And it, I will try to make it as simple as possible. And I know ki, like it would be very easy irrespective of the field you are in, commerce, science, arts, like it doesn't matter after all. So thank you for watching. Hope you guys like the video, and see you next time. Bye bye.